Good morning, students. Today we have to discuss about stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. So what is actually stereochemical aspect? And to understand the stereochemistry actually, we have to learn about some term here. What are the terms here? Optical activity, chirality, retention, inversion, racemization. Okay, this term we have to learn. So first one we are coming optical activity. What is the optical activity here? To learn that one you have to learn about plane polarized light. What is actually plane polarized light? Now when the light which is passing through the nickel prism, certain compounds they can actually when it is actually suppose we are giving one example जो simple light जो होता है, so they can rotate in every direction. Ordinary light means they can rotate in every plane there, but in case of light which has vibration only in one plane, that is called plane polarized light, है ना. एक ही प्लेन में जब वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और कब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होते हैं ना, व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू व्हिच वन ना, पासिंग थ्रू निकल प्रिज्म. ठीक है, निकल प्रिज्म. जब निकल प्रिज्म के थ्रू जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना तो इज पासिंग, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द ऑर्डिनरी लाइट इनटू व्हिच वन ना, plane polarized light. Means they are rotating which one in one direction, on one plane, only one plane. The we can say vibration is going on. One example I am giving here. Suppose if we are discussing about the ordinary light, so that will be actually vibrating in all direction. But when this is actually passing through one nickel prism, so they are actually, when they are passing through, so they are actually, vibration is actually going on in one plane, and this is called plane polarized light. ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्शन क्लियर हुआ अभी. तो अभी क्या है ना, कुछ सब्सटेंस होता है जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दे कैन रोटेट, है ना. which direction? They can rotate either in right or in left direction. So that's why that type of substance are known as optically active substance. They are known as optically active substance. Means they can rotate the plane of polarized light either in right direction or in left direction. Okay, so this is actually called the, when they are making the direction or rotate the plane polarized light in right direction, they are actually called dextrorotatory, dextrorotatory, and that is actually represented by which one? Na, plus. Okay, and when it is actually when they rotate the plane of polarized light towards left, that is called anti-clockwise direction, and then it is called levorotatory. Okay, so it is called levorotatory, and that is actually represented by which one? So it is coming, this is actually anti-clockwise, we can say, and this is towards left. The rotation is towards left, and this is actually clockwise. They are rotating the plane of polarized light towards right. That's what is called clockwise direction, and that is rotating the plane of polarized light towards right. Clear? So this is actually called the dextrorotatory and levorotatory. The names are there, and when that type of substance, those who are actually compound which can rotate this, that is called optically active compound. They are called optically active compound, and these isomers, they are called actually isomers. That is called optically isomers, optical isomers. That is, they are called actually, and this plus means dextrorotatory, and minus, these are isomers are actually called optical isomers. Okay,
Now we are coming, so these are actually term. So first we are coming about this one. You can see here all these things are given to us, the compounds which can actually, certain compounds rotate the plane of polarized light produced by passing ordinary light through Nicol prism when it is passed through their solution. कुछ कंपाउंड होते हैं जिसके सॉल्यूशन के थ्रू आप प्लेन और पोलराइज लाइट को जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओगे तो उसके जो रोटेशन आएगा, दे कैन रोटेट इट, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. द एंगल बाय व्हिच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड मेजर बाय one instrument, that is called polarimeter. If the compound rotates the plane of polarized light to the right or the clockwise direction, that is called dextrorotatory, and if or deform भी बोलते हैं इसको, और now it is actually represented by positive sign. And if the light is rotated towards the left, that is called levorotatory condition, and or the L form भी बोल सकते हो, but recently it is actually recognized or you can say represented by which one, negative sign. So such plus and minus isomers are called optical isomers. इसके बाद आपको क्या लर्न करनी है, molecular. So now we are coming about the molecular asymmetry, chirality and enantiomers, है ना. ये तीन टर्म अभी लर्न करनी है. So फर्स्ट दो ऑब्जर्वेशन आपको इधर लर्न करनी है. एक तो पास्तुर वाला ऑब्जर्वेशन है, तो जिसमें उन्होंने क्या देखा था ना, इन द फॉर्म some compounds exist in the form of mirror images led to the foundation of this modern stereochemistry. एक्चुअली ऑप्टिकल जो आइसोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो केमिस्ट्री हम लर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री. ही डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्वास सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल शोड द ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. जो दो मिरर इमेज उनके पास जो ऑब्जर्वेशन में आए थे, तो दोनों ही प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल अमाउंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड द 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स इनटू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल. ये उनका क्या था, कंक्लूजन था, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट वी कैन से 3-dimensional अरेंजमेंट. नेक्स्ट वन द हॉफ एंड बेल, ये जो 10 साइंटिस्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किए, दैट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स, है ना. देखो यहाँ पे ये बोला था कि 3-dimensional जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, और इन्होंने ये बोला था कि स्पेशल जो अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स around a central carbon atom is tetrahedral, and if all the substituents attached to the carbon are different, मतलब कार्बन के sp3 आप कार्बन ले लो टेट्राहेड्रल शेप, तो उसी कार्बन के चार बॉन्ड जो अटैच है उसमें जो सब्सटीट्यूएंट अटैच है, इफ दे ऑल आर डिफरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर. And the resulting molecule would lack the symmetry and refer as the asymmetric molecule. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गई. जो कार्बन, मान लो कार्बन उसके साथ अटैच कौन कौन सा है ना, CH3 है ना, C2H5 है, और इधर H है, और इधर मान लो Cl है. So definitely what is coming here, now that is the carbon which is attached with the 4 substituent there, they all are different. And that's why this carbon is known as, what is known as asymmetric carbon, and this is actually represented by star. Normally we are not representing, but actually this is called asymmetric carbon, and the molecule is known as the asymmetric molecule. So now we are coming to the portion here कि asymmetric carbon आपको समझ में आ गए, स्टीरियो सेंटर भी आपको समझ में आ गए. Now we are coming that is, जैसे एक अभी आ जाएगा कायरल और एकायरल. किसको कायरल बोलोगे, किसको एकायरल बोलोगे. अभी यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन आपके पास है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, दिस आर एक्चुअली मिरर इमेजेस, है ना, दिस आर ऑल्सो मिरर इमेजेस, बट हेयर वी कैन सी द मिरर इमेजेस कैन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. दीज ऑब्जेक्ट्स, है ना, which are actually whose mirror images are superimposable on each other, that is called achiral. ठीक है. And when the objects whose mirror images are not superimposable, that is called which one, chiral. तो ये हो गया chiral, क्योंकि आपके दोनों जो हैंड है, that is actually palm जो है, that is actually they are, we can say they are actually mirror images of each other, but they cannot superimpose on each other. ठीक
ठीक है ना. बट हेयर यू कैन सी द ग्लास, टम्बलर, स्फीयर, वॉट एवर यू आर टेकिंग. सो इन दैट कंडीशन यू कैन सी they are superimposable on each other, so that's why they are called achiral and this is called chiral. तो अभी क्या हो गया कि chirality can be applied to organic molecules. कैसे है ना, यहाँ पे आप देख लो. तो सिंपल, अगर ये तो सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है. तो आपके पास, अगर आपके पास है कि एक कंपाउंड आप ले लेते हैं, कौन सा है, प्रोपेन टू ऑल, है ना. कौन सा कंपाउंड है ना, प्रोपेन टू ऑल. तो प्रोपेन टू ऑल में हम आपको दिखा देते हैं इसको, ठीक है. तो अभी देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आप ये हो गया CH3, है ना. यहाँ पे भी आप डैश एंड वो स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे, सो इट इज टुवर्ड्स यू, दैट इज CH3 एंड दिस वन इज कमिंग ऑन द पेपर एंड दिस वन इज ऑल्सो कमिंग ऑन द पेपर, ठीक है. सो अभी ऑन द पेपर दो है, एक अवे फ्रॉम यू एंड टुवर्ड्स यू. तो ये कंडीशन हो गया, कौन सा है, प्रोपेनॉल कंडीशन. कौन सा कंडीशन है ना, प्रोपेन टू ऑल. तो इसको आप क्या बोलोगे, एकाइरल बोलोगे या काइरल बोलोगे, ये कंडीशन है. तो यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख देते हैं तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा, मिरर इमेज, ये OH हो गया. अच्छा, यहाँ पे आपको मैं CH3 ड्रॉ कर देती हूँ अवे फ्रॉम यू एंड यहाँ पे आपको मैं, है ना, टुवर्ड्स यू, ये भी CH3 है और ये भी है H. तो नॉर्मली ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. एंड एट दैट कंडीशन अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट भी करोगे, है ना, कितना 180 डिग्री रोटेट करोगे, मान लो आपको लगेगा कि OH इस तरफ है, तो OH को हम राइट हैंड साइड में लेके जाने के लिए क्या होना है कि उसको 180 डिग्री आप रोटेट कर दोगे. तो क्या हो जाएगा ना, रोटेट करोगे तो यहाँ पे तो जरूर आ जाएगा OH, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही क्या, वही CH3 आ जाएगा. और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में ये वो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, OH3 CH3 एंड यहाँ पे H आ जाएगा प्लेन ऑफ पेपर में. तो अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन आएगा, जो आप 180 डिग्री अगर इसको आप रोटेट करा दोगे OH को इधर लाने के लिए, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है. सो वी कैन से हेयर ना, प्रोपेन टू ऑल एंड द मिरर इमेज, है ना, द मिरर इमेज is superimposable on each other and that's why the molecule is what we can say here, achiral. Clear now? This is actually achiral because A, this is the structure of A and that and its mirror image B or C are superimposable on that one, because what is away from you and what is actually towards you, both the radical or both the we can say the substitute are same, है ना, both the substitute are same here. Now we are coming for the one more condition, that is butane butane to all. So we can say here, sorry थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कौन सा, CH3. द स्ट्रक्चर में, वेस्ट स्ट्रक्चर में मैं ड्रॉ कर देती हूँ इधर, कौन सा है, C2H5 मैं ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने H ड्रॉ करा और यहाँ पे मैंने OH ड्रॉ करा. तो हो गया क्या स्ट्रक्चर ये, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन टू ऑल. क्लियर. इसके हम मिरर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे COH, ठीक है. और इसके बाद क्या हो गया, डैश स्ट्रक्चर. इसके बाद क्या हो गया, वेस्ट स्ट्रक्चर. वेस्ट स्ट्रक्चर में कौन आए, C2H5 and this one is H and this is we can say non superimposable. मतलब क्या है ना, सब्स्टिट्यूट सब अलग अलग है. तो दैट इज डेफिनेटली इट इज कौन सा है ना, दिस इज स्टीरियो सेंटर एंड एसिमेट्रिक कार्बन वी कैन से, है ना. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग. तो इसकी अगर आप 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो क्या कंडीशन आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था, क्योंकि आपको देखो, आपको इसको सुपर इम्पोज करने के लिए मिरर इमेज को थोड़ा 180 डिग्री, इसीलिए हम एंगल को रोटेट करा रहे हैं, क्योंकि OH विल बी कमिंग इन राइट साइड. यहाँ पे भी OH राइट साइड में था, यहाँ पे भी OH राइट साइड में आ रहे. तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा ना, इसको आप डैश स्ट्रक्चर में हम क्या देंगे इधर, C2H5. जब भी इसको आप रोटेट कराओगे तो ये C2H5 अभी आपकी तरफ है, जब भी रोटेट करोगे तो क्या होगा, C2H5 अवे फ्रॉम यू हो जाएगा.
और CH3 क्या हो जाएगा ना, आपके तरफ हो जाएगा CH3, तो OH स्ट्रक्चर में कौन आएगा, ये तो डैश स्ट्रक्चर में C2H5 हो गए, और ये CH3 हो गए, और ये हो गया H। तो डेफिनेटली नाउ द स्ट्रक्चर is non-superimposable on each other. Why? Because यहाँ पे CH3 था away from you, यहाँ पे C2H5 away from you हो गया, तो that's why it is called these are called actually chiral. Okay, these molecules are chiral. So यहाँ पे आपको देखो स्ट्रक्चर दे के रखा है कि as you can see very clearly propane 2-ol does not contain an asymmetric carbon, क्योंकि all the यहाँ पे जो all the 4 groups attached to the tetrahedral carbon are not different, यहाँ पे CH3 CH दोनों ही सेम है, तो this is an achiral molecule हो गए। और नेक्स्ट वन वी आर कमिंग कि जब भी ब्यूटेन 2-ol हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन, एक तो CH3 है, C2H5, H, और वो चारों ग्रुप ही अलग अलग है, तो कार्बन इज एसिमेट्रिक। एंड इसी स्टीरियो आइसोमर को हम क्या बोलते हैं कि एनेंशियोमर, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एनेंशियोमर। एंड दिस एनेंशियोमर पॉजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। अगर एक आइसोमर एनेंशियोमर क्या होता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो अदर विल बी लेवोरोटेटरी। तो नॉर्मली अगर इसको हम अगर दोनों मिक्सचर, मतलब कोई मिक्सचर, देखो यहाँ पे लिखा है मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि एक एनेंशियोमर अगर राइट हैंड साइड में रोटेशन कराएगा तो दूसरे एनेंशियोमर क्या होगा ना, दे आर एक्चुअली रोटेटिंग इट इन लेफ्ट हैंड साइड, तो रिजल्ट के नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेसिमाइजेशन। इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे ना, प्लस माइनस से, दोनों को एक साथ रखने के बाद इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ब्यूटेन 2-ol, ब्यूटेन 2-ol क्या हो गया कि रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द एनेंशियोमर्स, they are optically active, they are containing the carbon that is stereo center, that means that is asymmetric carbon they are containing, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, they are actually called the racemic, they are forming the racemic mixture and the process is called the racemization। अभी नाउ आ जाते हैं और 3 प्रोसेस, दैट इज रिटेंशन और इन्वर्शन एंड रेसिमाइजेशन। देखो रिटेंशन किसको बोलते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई बॉन्ड को ब्रेक ना करके कोई एसिमेट्रिक कार्बन जो हो उसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट हो, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा लेकिन विदाउट एनी ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे बोला है देखो कि रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो ये सेंटर ये स्टीरियो सेंटर है, बट स्टीरियो सेंटर की कोई बॉन्ड ब्रेक ना करके अगर उसी की जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल अरेंजमेंट मीन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोई चेंज ना हो, है ना, एंड रिएक्शन ऑकर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। जैसे एक एग्जांपल आपके पास है, एज एन एग्जांपल द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol, देखो यहाँ पे नेगेटिव देके रखा है, मतलब कौन सा है, लेबोरेटरी कंडीशन, और यहाँ पे पॉजिटिव देके रखा है, मतलब क्या है, एक्सट्रोडेटरी कंडीशन, मतलब इट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन व्हिच डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट में रोटेट कराएगा, बट एक्चुअली कन्वर्शन चेंज नहीं हुआ, कॉन्फिगरेशन जो है दैट इज नॉट चेंज, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसकी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एसिमेट्रिक कार्बन की चारों बॉन्ड दैट इज नॉट ब्रोकन, सो दैट्स व्हाई द रिटेंशन एज इट इज कॉन्फिगरेशन इज रिमेनिंग देयर विदाउट ब्रेकिंग द एनी बॉन्ड, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, रिटेंशन। इन्वर्शन किसको बोलते हैं ना, जब भी मान लो, जैसे इन्वर्शन तो पहले ही आप पढ़ चुके हो कि जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब दे आर एक्चुअली अटैकिंग, द न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग द ऑपोजिट टू व्हिच वन, ऑपोजिट ऑफ द वी कैन से द हैलोजन, इफ वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट वन। सो नाउ इट इज कमिंग अबाउट द व्हेन एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन की जो बॉन्ड है दैट विल बी ब्रोकन, है ना। एसिमेट्रिक कार्बन की बॉन्ड जो है, देखो ये एसिमेट्रिक कार्बन की बॉन्ड है, ये ब्रोकन हो गया और X इज रिप्लेस्ड बाय Y। सो एट दैट कंडीशन 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, आइदर दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन और दिस इज कॉल्ड द इन्वर्शन। मतलब जिस तरफ है X उसी तरफ Y अटैचमेंट हो रहे हैं, और जिस तरफ X है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में Y की अटैचमेंट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको बोलते हैं रिटेंशन और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। पूरा फिगर क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, जैसे इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह,
तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इन्वर्शन। अभी दोनों की मिक्सचर जब आएगा 50-50 मिक्सचर, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकली जो मतलब रोटेशन दैट विल बी कमिंग, नेट रोटेशन विल बी कमिंग 0, बट एक्चुअली द 50-50 जो मिक्सचर आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। एज वन आइसोमर विल रोटेट द लाइट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू अनदर, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया 50-50% मिक्सचर। अच्छा, ए हो गया रिटेंशन एंड बी हो गया कौन सा, इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। अभी देखो SN1 मैकेनिज्म में क्या हुआ ना, दैट इज एक्चुअली इन्वर्शन। देखने से आपको पता चल गया ये कि SN2 जो है, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ SN2 mechanism has inverted configuration. Why this OH is attached or attack this, we can say the haloalkane in the opposite direction where the halogen is attached. ठीक है, तो टोटली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ना, चेंज्ड हो गया। चेंज मतलब इन्वर्टेड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। इट इज हैपनिंग इन SN2। SN1 में क्या कंडीशन हो जाएगा ना, व्हेन SN1 accompanied by which one, रेसिमाइजेशन। लुक एट हियर, क्योंकि ना कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहे, दैट कार्बोकैटायन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज, मीन्स प्लानर, है ना। ये sp3 था, ये sp2 में कन्वर्शन हो गया। अभी sp2 जो है तो दोनों साइड से OH अटैक हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक ही कंफर्म था कि OH ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं रहा, और क्योंकि ये प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। और जब प्लानर स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज अकाइरल एक्चुअली, दैट अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल में बी अकम्प्लिश्ड बाय एनी अदर साइड, मतलब ये इट कैन बी अटैच टू इट दैट कार्बोकैटायन बाय फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो। सो एट दैट कंडीशन वी कैन से दिस अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे प्लस भी आ रहे, प्लस ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ पे माइनस ब्यूटेन टू ऑल, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटरी कंडीशन एंड लेबो रोटरी कंडीशन इज देयर, सो एंड दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। सो इन केस ऑफ SN1 mechanism the product is racemic mixture, in case of SN2 mechanism the product is inversion. Okay, this is the mechanism of stereochemical mechanism, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, stereochemical mechanism, and of which one, of SN1 and SN2 and SN1 mechanism.